तो अभी पूरी मीन्स ये ऑनलाइन सेशन है, आप का वीडियो बंद है, तो ऐसे नहीं है कि घर में गाने लगाए हैं, टीवी के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, किसी के साथ बात कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं और मेडिटेशन करें, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो आप मेडिटेशन मत करिए, ठीक है। तो करना है तो गिव योर 100%, आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव माई 100%, राइट। तो अभी फिर एक बार सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। इस ध्यान को आप शवासन में भी कर सकते हैं, आप कुर्सी के ऊपर बैठ के भी ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, नहीं तो 5 मिनट के बाद अगर घुटने में दर्द होने लगा तो सब ध्यान उसके ऊपर जाएगा और मेडिटेशन चैंटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेटल डाउन yourself, sit in any comfortable meditative posture. Your gross body should not come in any form of in between any way. एक बार सभी आपका माइक चेक करें, म्यूट करें, सब लोग माइक म्यूट करें और बीच में याद रखिए म्यूट ही रहिए। The preparatory for any form of meditation is to relax the mind, relax the body. Please be well connected to the spaces where we are seated, making every aspect connected to us to be protective, to be supportive of us, and to enhance the effectiveness of our meditation. Feel the space and energy and connect with your heart energy. We are getting connected with our place. Please visualize it. One deep breathing for that bonding between you and your place. And with this effect, close your eyes gently. Now focus your attention on the position you have opted for performing this meditation. From your toes, sole, heel, to the top of your mind, top of your head, how you have placed yourself. Observe your body. Check your feet alignment, knee alignment, spine alignment, neck, head. Now close your eyes again and focus your mind on breathing. Inhale and slowly exhale and follow the path of your breathing. Silence down your mind. And now visualize on your mental screen Lord Shiva sitting on the lotus calmly and peacefully. Fold your palms at your heart. नमस्कार मुद्रा में आइए. Step 1 of MSRT technique, prayer together, prayer of Shiva. Lord Shiva has Trayambaka. Inhale. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Bandhanat Mrityormukshiyamamrutat. Om Shanti Shanti Shanti.
Drop your hands down and adopt Chin Mudra या Jnana Mudra. Connect yourself with the Divine Shiva by recalling your prayers, recalling your chanting, and visualizing Him on mental screen, blessing you. Now visualize Om image mentally on your mental screen. The Pranava, the Nada, the source of energy of the whole universe is captured on your mental screen. Om, a clear, vibrant Om on your mental screen. Hold on that vision. Now we will chant Omkara 3 rounds, Akara, Ukara, Makara, and then Uma together in single breath. First round, Akara chanting. Take a deep breath in. Ukara. Take a deep breath in. Makara. Inhale. Together in single breath. Take a deep breath in. Feel the vibrations throughout your body. Second round of Akara, Ukara, Makara chanting, and then followed by Uma together in single breath. While you chant Akara, bring your awareness in the lower part of your body and let us chant Akara loudly. Take a deep breath in. Now gently shift your awareness in the middle part of your body and let us chant Ukara loudly. Take a deep breath in. Try to feel the vibrations in the middle part of your body. And now shift your awareness in the upper part of your body and let us chant Makara loudly. Take a deep breath in. Feel the vibrations and resonance in the upper part of your body. And now shift your awareness. Visualize your entire body. And let us chant Uma together in single breath. Inhale.
Now coming to the next phase of MSRT, that is Ahata Anahata chanting, loud chanting, followed by mental chanting. लाउड चैंटिंग करेंगे, उसके बाद मानसिक जप करेंगे. आकार चैंटिंग, लाउड चैंटिंग, आहत चैंटिंग. इनहेल डीपली. Anahata chanting, that is mental chanting of Akara, and try to feel the resonance in the lower part of your body with same vibrations and resonance. Mental chanting of Akara. Inhale deeply. Loud chanting of Ukara. Take a deep breath in. Anahata chanting, mental chanting of Ukara. Take a deep breath in. Loud chanting of Makara. Take a deep breath in. Try to feel the vibrations and resonance in the upper part of your body. And let us chant Makara mentally. Take a deep breath in. Try to feel the vibrations and resonance in the upper part of your body. And now visualize again your entire body and let us chant Akara, Ukara, Makara in single breath, loud chanting. Take a deep breath in. Feel the resonance throughout your body. And now let us chant O Uma together in single breath, mentally, with same frequency and vibration. Take a deep breath in. Now coming to the next step of MSRT, that is chanting of Mahamrutyunjaya mantra, and try to feel the patterns of resonance in the each part of your body. त्रिनेत्रधारी शिव का जो रूप आपको अच्छा लगता है वो आंखों के सामने लाए. Visualize Lord Shiva again in front of your mental screen and let us chant Mahamrutyunjay mantra. Loud chanting. Take a deep breath in. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanat Mrityormukshiyamavamrutat.
Try to feel the patterns of resonance throughout your body. One more round of Mahamrutyunjay. Take a deep breath in. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Bandhanat Mrityormukshiyamamamruta. Coming to the next step, that is Ahata Anahata chanting of Mahamrutyunjay mantra. Loud chanting. Take a deep breath in. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Bandhana Mrityormukshiyamamruta. Anahata chanting, mental chanting followed by loud chanting, and try to feel the patterns of resonance throughout your body. Mental chanting, take a deep breath in. Try to feel the resonance throughout your body. And now coming to the next phase, that is Akara Ukara Makara chanting in single breath, mental chanting of Omkara, 5 rounds. अकार उकार मकार का जाप करेंगे, मन ही मन मानसिक जाप करेंगे. टेक अ डीप ब्रीदिंग. और ये जाप जब हम करने लगेंगे, हम अजपा जप स्थिति का अनुभव करेंगे. बिना सायास अपने आप ही जाप हो रहा है. ट्राई टू फील दैट साइलेंस इन अजपा जप स्टेट. और ये जाप करते करते एक पूरे साइलेंट स्टेट का हम अनुभव करेंगे. सत चित आनंद स्थिति का अनुभव करेंगे. लेट अस चांट अकार उकार मकार mentally 5 rounds. Take a deep breath in. जपा जप स्थिति अनुभव. जपा जप diffuse into silence. धीरे धीरे जपा जप को मौन में फैलाए. मन बिल्कुल खाली है, कोई भी विचार नहीं. टोटल साइलेंस स्टेज. सत चित आनंद स्थिति. सच्चिदानंद स्थिति.
यही हमारा मूल स्वरूप है, इसका अनुभव करें। और इसी सत चित आनंद स्थिति में अभी हम संकल्प करेंगे। टेक वन पॉजिटिव रिजॉल्व एंड रिपीट इट फॉर 5 टाइम्स। एक संकल्प करे, सकारात्मक विचार ले और उसी वाक्य को पूरी विश्वास के साथ हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन, सत चित आनंद स्थिति में आज हमने संकल्प किया है। इन द प्योर स्टेट ऑफ माइंड, मन की शुद्ध अवस्था में, इन द डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, अब हम ब्रह्मांड के कल्याण का जाप करेंगे। सभी खुश रहे, सभी कष्टों से मुक्त हो, सभी को वो सर्वशक्तिमान की कृपा प्राप्त करने दे। Join your palm for the closing prayer. Take a deep breath in. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़े एंड मेक अ कप शेप ऑफ योर हैंड और आंखों के ऊपर रखे। फील द एनर्जी थ्रू आउट योर बॉडी और आसपास के वातावरण के। एंड नाउ जेंटली ओपन योर आईज। थैंक यू, धन्यवाद। हमको लगता है कि हम आज जितने भी 70-80 आदमी ज्वाइन किए, भगवान का बहुत पूजा किए थे, जिससे आज हम लोगों को इतना सुंदर, इतना बढ़िया योगा के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। प्रसाद साहब खुद बताएंगे, खान साहब खुद बताएंगे, नागेश जी और सारे जितने भी लोग हैं, और जरूर उनके हार्ट में असर किया होगा। आपने, स्मृता कुलकर्णी जी, आपके हम आभारी रहेंगे। और आपने हम लोगों को एक दूसरी दुनिया में एक दूसरी दुनिया दिखा दी, और हम लोग यही चाहते भी हैं। इतना सुंदर समय का सदुपयोग शायद ही कोई कर पाता होगा दुनिया में, जो आज हम लोगों ने किया और हम लोग करते रहेंगे। विजय जी ने हैंड रेज किया है। विजय जी वांट्स टू आस्क समथिंग। आप पूछना चाहें वो पूछिए। सुब्रज्योति सरकार ने कहा जस्ट वंडरफुल, ऑनरेबल एंड रियली इट वाज ऑनरेबल। भगवान आप सभी को लंबा उम्र दें और हम लोग जब तक जीवित रहें, ये सुंदर वेबिनार ग्रुप जागृत रहे और हम सभी अच्छे अच्छे सात्विक विचार वाले लोग एक साथ मिल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें और इस आनंद को लाभ लें। क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है,
जितना भी समय है उसका सदुपयोग स्मिता कुलकर्णी ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ हम लोग करते रहें। और मैं विजय जी से पूछूंगा, वो क्या पूछना चाहते हैं पूछें। विजय जी, विजय जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, उनका पहले से ही हाथ ऊपर ही है शायद अच्छा ऐसे। अच्छा, उनका हाथ ऊपर है। मैं अपने चीफ गेस्ट अखौरी साहब का रिएक्शन जानना चाहूंगा, और उनको क्या आज के इससे ज्ञान मिला। हम लोगों ने इतना समय जो सुना आपको ध्यान से, वास्तव में हृदय शांत हो गया। मेरा तो बहुत शांत हुआ। सबसे पहले अपने सबसे विद्वान और सबसे बुजुर्ग ही 83 ईयर्स ओल्ड, उनका आशीर्वाद हम लेना चाहेंगे। सर आप बताएं, आप हमारे बहुत महान व्यक्तित्व हैं। आपके मुंह से हम, एक महान आदमी ही महान आदमी के बारे में कुछ बता सकता है, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। प्रसाद साहब, प्रसाद साहब। हम स्मिता जी के, स्मिता कुलकर्णी जी के प्रति सबसे पहले आभार प्रकट करने के लिए नतमस्तक हैं, और आपको बड़े हृदय से आपका सत्कार करते हुए, आपको ऐसे इमेज में हम देखने लगे हैं जैसे आप हमारे और आगे के जीवन में कितनी पवित्रता आए, ईश्वर के प्रति प्रेम कभी रुके नहीं बढ़ने या आगे बढ़ने में, उसमें आप सहायक हैं। और स्मिता जी ने जिस तरह से एक काफी क्लिष्ट विषय को मैं समझता था, मेडिटेशन को, और लगता था कि हमको ये कभी नहीं आएगा, कभी हम नहीं सीख पाएंगे। सुनते रहते थे कि परिवार में ही कुछ लोग इस रास्ते से चलकर काफी आगे बढ़े। हमारी पत्नी भी बचना में जब कहते हैं, लेकिन आज का जो अनुभव हमें मिला, उस अनुभव से हम ये कहेंगे कि एक तो एक चाह बनी है, एक इच्छा मजबूत हुई है, एक संकल्प मजबूत हुआ है कि आगे के जीवन में एक एक पल को हम सही तरीके से जिएं, और अपनी संस्कृति, अपनी ज्ञान, जो जिसके बारे में केवल सुनते थे, उपनिषदों की बात, मंत्रों की बात, महामृत्युंजय मंत्र, इसके बारे में जब भी कभी देखने को, सुनने का मौका मिलता था, तो उसका उद्देश्य नहीं समझ पाते थे। किस उद्देश्य से? ये क्या ऐसी सीढ़ी है जो मृत्यु के समय हमारे सामने लग जाएगी, ताकि हम इस पर सवार होकर के ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे। ऐसी भावनाओं के बीच न साइंस समझ में आता था, न स्पिरिचुअल पार्ट जो है। लेकिन आज जिस तरह से साइंस और योग के रास्ते अलग अलग होते हुए भी आज तक ये नहीं मालूम था कि हम साइंस से आगे बढ़ गए हैं।
सोच भी नहीं सकते थे कि साइंस से कैसे आगे बढ़ जाएंगे। आज तो साफ मालूम हो गया कि साइंस बहुत पीछे छूट गया है, बहुत पीछे छूट गया है। मुझे एक बात और कहने की अनुमति दें अगर स्मिता जी। मैंने एक जगह पढ़ा था, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। एक जगह पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि वैदिक पीरियड में जो लोग यज्ञ करते थे, पशुओं को मारते थे, तो उसमें हमने 1 मिनट और लगेगा इसको हमको एक्सप्लेन करते हैं, इसको बस समझाने में, कि हमने देखा कि यज्ञ में मेडिटेशन ही था, और जो मंत्र पढ़े जाते थे उन मंत्रों का असर, उन मंत्रों का प्रभाव जजमान पर वैसे ही पड़ता था जैसे जजमान अपने सभी अंगों को काट काट कर देवों को अर्पित कर रहे थे। तो ये भावना से यज्ञ की जाती थी, और जब मंत्रोच्चारण होता था यज्ञ का तो सुनने वाले सब के सब इतने प्रभावित होते थे। यज्ञ में तो मेरा ख्याल, मेरा अनुमान है, तो आप बताएंगे, मंत्र ही प्रधान था, मंत्र का उच्चारण प्रधान था। और जिन बातों की बात चर्चा हुई, रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस जो मेंटल रेजोनेंस है, मैं तो शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन अगर इसका इफेक्ट सुनने वालों पर भी होता होगा तो यज्ञ के विरोध में सोचना भी शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि वह जितने देर वो मंत्र का उच्चारण होता हुआ उसका प्रभाव सुनने वालों पर पड़ता होगा, और उससे प्रभावित होकर यज्ञ के जजमान और यज्ञ में भाग लेने वाले, सुनने वाले लोग सब लाभान्वित होते होंगे। तो ऐसा मुझे लगा जैसे उसमें भी कुछ बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ा गुण था जिसकी जरूरत थी उस जमाने में। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल समझ मैं समझता था इस ज्ञान को, लेकिन हर ज्ञान का जिस साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप, वन लीडिंग टू द अदर इन सीक्वेंस, तो लगता है कि सीढ़ी चढ़ने की पहली सीढ़ी पर चढ़ने का ही प्रयास करना है, उसके बाद रास्ता साफ दिखा है, अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकता है व्यक्ति। और वो सच्चिदानंद की जो बात कही, जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हर है भी, और मृत्यु का डर से रहित हो जाना, ये सब बहुत ही संभावना से बहुत संभावित है, और इस संभावना को सोच करके बड़ी खुशी हो रही है। और फिर हर तरह से श्रीमती कुलकर्णी जी को अपना आभार प्रकट करते हुए, और अमिताभ जी को, ये सब हम लोगों को जोड़ के रखा है, इसके लिए उनका भी आभार, और सभी मित्रों का आभार। ऐसा समय भी मिलता है, ऐसा
हफ्ते में एक दिन का कितना सुंदर सा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर। थैंक यू सो मच। यस, दो बातें मैं ऐड करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके विचार से मैं प्रभावित हुई है। जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्र शास्त्र के ऊपर हमारे वेद उपनिषदों में बहुत कहा गया है। और जब मंत्र मीन्स ये तंत्र शास्त्र का एक पार्ट है, मंत्र और यंत्र ये दो भाग है। तो अभी मंत्रों के बारे में हमने सुना है, और जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसका उच्चार, उसका छंद, उसका अर्थ, वो मंत्र की देवता और ऋषि, इन सभी मीन्स ये बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। और यज्ञ की बात आपने की है, तो अभी यज्ञ लोग ज्यादा नहीं करते, लेकिन मीन्स हमारे पूरे इंडिया में ऐसे अभी अग्निहोत्री जो फैमिलीज है, मीन्स करीब वो 200 से 225 तक रहेंगे, जिनके घर में अग्नि सदैव प्रज्वलित रहता है। और मैं बता देना चाहती हूँ, अभी मुझे याद आया, जब हमारी भोपाल दुर्घटना हुई थी, आप सबको याद होगा 1984 या समथिंग लाइक दैट, तो वो भोपाल दुर्घटना में उधर एक ही कुटुंब को कुछ भी नहीं हुआ था, they were intact, and that was अग्निहोत्री फैमिली। सो यज्ञ का भी बहुत महत्व है, और ये मंत्रोच्चारण का भी बहुत महत्व है। और आप अगर सुबह उठते 5 मिनट भी कोई मंत्र आप जाप करते हैं उसका, और ओंकार तो इट इज सबसे मीन्स विश्व का स्पंद है, तो आप करते रहिए, ऐसे मुझे कहना था। कार्तिक जी ने हाथ शायद ऊपर किया है, उनको कार्तिक जी ने किया है, पल्लव छिटी जी ने किया है, पल्लव जी भी पूछेंगे, बहुत विद्वान है। कार्तिक जी पूछिए। कार्तिक जी, ऐसा समय बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है। मैं स्मिता मैम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आगे भी आती रहेंगी। हाँ, कार्तिक जी पूछिए। कार्तिक जी पूछिए। हाँ, आई विल टेल लेटर। या टेल व्हाट यू वांट टू टेल, प्लीज टेल। भरत पटेल जी गुजरात से हैं। भरत पटेल जी बहुत विद्वान, बहुत सात्विक पुरुष हैं। हाँ, कार्तिक जी आए इसलिए मुझे अच्छा लगा। भरत जी बहुत का नाम अच्छा, देख के मैं खुश हो गई। और भरत जी तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक काम करते हैं वो गुजरात में, और उनको बहुत अच्छा अनुभव है, भगवान की कृपा है वो भी आए। अच्छा, कार्तिक जी पूछिए। नहीं, वो आगे देखेंगे क्योंकि उनका अनम्यूट शायद नहीं हो गए। पल्लव जी बोलिए। अच्छा, स्मिता मैम, सादर आभार, धन्यवाद। और चूंकि आपने आचार्य नागेंद्र जी का नाम लिया है, और आपको मैं बता दूं कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैं जब था, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा हुई कि यहाँ पे एक सेंटर खोला जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर। और हमारे उस समय में 2016 में आचार्य नागेंद्र जी ने उद्घाटन किया, और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम शर्मा चीफ बने, और मैं पहला प्रशासनिक अधिकारी उस सेंटर का बना। और इसलिए आज आपकी बातें सुन करके रिजोनोवेट हो गया है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि अभी मैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नप्पा में हूं, औसत विभाग में, और इस बार हम लोग वही रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो दवाई का खर्चा जो हुआ है, मैक्सिमम जो ट्रेंड्स गए हैं वो स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ केयर पे गया है। दैट इज रियली सैड। नाउ वी वांट टू कम अप विथ व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज दिस। नाउ यू हैव सेड, एंड कल मैं खुद आई हैव बीन अपॉइंटेड, इनवाइटेड बाय a society for cancer awareness campaign। कल मैं अमिताभ जी से क्षमा मांगूंगा कि कल मैं नहीं रहूंगा, कल इसी समय में मैं कहीं और मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। एंड कैंसर अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कल मैं वहां पे ये रहूंगा।
लेकिन मेंटल स्ट्रेस के लिए मैम जो आपने बताया और जो हम लोग ऑलमोस्ट CIMR ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज के डेट में 570 दरवाजा रिसर्च बंद कर पब्लिश देना। हो गए, जिसमें बताया गया है कि कैसा ट्रेंड है। जैसे आपने बताया ना कि आप अपनी पल्स ये कीजिए योगासन एंड आपका मेडिटेशन से पहले और उसके बाद में, ये हम लोग सेंटर में 8वीं फ्लोर में हम लोग शुरू किए हैं मैम। एंड ढेर सारे लोगों को हम इनवाइट करते थे, हालांकि अब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नहीं हूं, मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हूं, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं आज के डेट में, लेकिन ये योगा को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं। अभी भी मॉर्निंग वॉक में एक हम छोटा सा हैप्पीनेस ग्रुप, मेरा लोधी गार्डन में मॉर्निंग वॉक होता है, तो जो ठहाका लगाने वाला जो उच्चारण होता है जो आप लोग ये करते हैं, योगा हमेशा चलते रहता है, 4 योगा सेंटर्स रहते हैं। तो आज के जमाने में अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। एंड धन्यवाद कि आचार्य नागेंद्र जी, उन्हीं के एक शिष्य हैं रविंद्र, आचार्य रविंद्र जी, जिनका जोरबाग में एक सेंटर था, अब उन लोगों ने शिफ्ट कर लिया है। कई बार मैं जाता हूं, उनसे मैं मिलता हूं, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, आज का आपका सेशन बहुत फायदेमंद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सब लोग इसके ऊपर में प्रेरित होंगे, और यही है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज नाउ हैप्पीनेस। शुक्रिया मैम। बहुत बहुत कल कैंसर के पेशेंट को एक साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि MSRT जब गुरुजी ने मींस डेवलप किया तो कैंसर पेशेंट उनके आरोग्य धाम में जो आते थे और 3rd 4th स्टेज में थे, तो उनके लिए पहले उन्होंने ये डेवलप किया और बाद में पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए बाकी लोग भी उसको यूज करने लगे। लेकिन कल अगर आप जा रहे तो उधर भी आप बोलिए। नहीं, मैं गूगल मीट में ही हूँ, यहाँ पे प्रेरणा मैम ने भी हाथ खड़ा किया है, शी विल बी ऑल्सो बी देयर, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन रजिस्टर दैट वेबिनार। 200 से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। मैम विल गाइड, प्रेरणा मेहता मैम इज ऑलरेडी देयर, शी इज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दैट वेबिनार, सो आई विल बी गिविंग माय इनपुट, आई हैव प्रिपेयर्ड, एंड मैं बताऊंगा कि भारत सरकार ने कितना ज्यादा कोशिश किया है कि 2014 ऑनवर्ड्स जो मेडिसिन थी, आई हैव सीन मैम, we lost 5 cabinet minister during my tenure in AIIMS due to cancer. Yes. तो कोई नहीं, वो कल बात करेंगे, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। आपको शुक्रिया और धन्यवाद देने के लिए मैं सोचा कि मैं 2 मिनट आपको जरूर मैं ये करूँ। नमस्कार मैम। जरूर भेजना वो वेबिनार। जी, क्वेश्चन नाउ। हाँ ओके। अच्छा प्रेरणा, ये पल्लव ठीके साहब, कल आप तो वहाँ कर रहे हैं, कल मेरा भी एक इम्पोर्टेंट सेशन है कि घाना और अफ्रीका और इंडियन कल्चर में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, महान लोगों को, तो उसमें भी लोग रहेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पंकज जी, पल्लव जी और प्रेरणा मैम जो डायनामिक लग रही हैं, हमारे ग्रुप में आई हैं, तो हम चाहेंगे दोनों मिल करके एक सेशन हमारे वेबिनार अमिताभ ग्रुप में भी आप करवाइएगा, कैंसर से मुक्ति वाला जो कल सेशन करवा रहे हैं आप। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सबको पहले तो प्रणाम कहूंगी हाथ जोड़कर, और मैम आपका बहुत अच्छा था, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे पता है उसकी वैल्यू। और एक चीज और कहूंगी, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, बट हाँ, मेडिटेशन से हम टेलीपैथी भी कर सकते हैं अगर आपको डिटेल आता है तो। थोड़ा प्रोसेस लंबा है बट हम कर सकते हैं। तो हम ये मेडिटेशन हम एक संडे, अगला संडे आप दोनों का रखेंगे, पल्लवी मैम, पल्लव जी और प्रेरणा मैम का। तो आप लोग मुझे प्रेरणा कहिए, मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे अच्छा लगेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ज्ञानी तो हमें अगर मैसेज में डालती है तो और मुझे वेबिनार का डिटेल्स भेजिए प्लीज। जी मैम, बिल्कुल। जी स्मिता मैम से मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। जी सर। जी स्मिता मैम, जब हम वो और म जब बोलते हैं तो मन में बोलने का है ना, पहले तो लाउडली बोलते हैं, बाद में मन में ही बोलने का, उसका बाहर साउंड नहीं आना चाहिए, राइट? राइट, यस।
अच्छा, तो मन में बोला बिल्कुल साउंड नहीं आना चाहिए उसका, करेक्ट ना? बिल्कुल नहीं। यस, अगर हम मन में विचार करते हैं, अभी आप बोल रहे हैं लेकिन एट द बैक ऑफ आवर माइंड विचार चल रहे हैं, तो उसका आवाज आ रहा है जी। क्या? नहीं आ रहा है, तो ठीक नहीं, वैसे ही मन में विचार चलते तो आवाज नहीं आता है। यस, तो मन में बोलना है ओमकार को। ओके, सेकेंड स्टेप में लाउड चैंटिंग फॉलोड बाय मेंटल चैंटिंग, राइट। अरे वाह, ओके, ये थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा। इससे पता चला कि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और आपने प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा। और भी पूछिए, और भी पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो किसी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और पूछिए, सर मुझे पूछिए। कुछ कहना था, पल्लव हाँ। सर को थैंक यू कि उन्होंने मुझसे एक बार बात की है, तो सर प्रणाम एंड थैंक यू। और मुझे सौभाग्य है कि मैं आपके साथ कुछ बोलूंगी तो मुझे सीखने मिलेगा। अरे वाह, अरे वाह, रिस्पेक्ट नहीं आपका नहीं बहुत मैम, स्वागत है। मेरे लिए हर एक मोमेंट एक लर्निंग मोमेंट है। और जब जब अब जैसे मैं नया विभाग में भी जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं सबसे छोटे अधिकारी को मैं बोलता हूँ कि आप पहले मुझे सिखाएं। आप पहले गुरु बनेंगे, तभी तो कुछ सीखना है मैम। इसलिए आप चूंकि शिक्षिका और कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे ही, लेकिन गुरु रहता है ऑलवेज। शिष्य, अब हम लोग तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन आप लोग हैं, हम लोग सब साथ साथ हैं। जैसे मैम ने बोला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सर्वे का काम जरूर आएगा। सब लोग मिल करके हम लोग आगे बढ़े। धन्यवाद। सर स्मिता, मैं छोटी हूँ और एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है, तो बड़ों का एक्सपीरियंस मतलब रास्ता दिखाना ही जरूरी होता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, और थैंक यू अमिताभ सर कि आपने चांस दिया मुझे। ऐसे आपने मतलब कोई बात भी नहीं की, बट स्टिल मुझे चांस दिया उसके लिए। और मैम आपका सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सीखने अच्छा। मिला। अस्मिता मैम, आई विल सब टेक यहाँ हाफ मिनट। हाँ हाँ, बोलिए नागेश जी। अस्मिता मैम, ही मैं इज आधा ऑल्सो मिनट दे ग्रेट रहा हूँ। स्कॉलर। हाँ, बहुत बड़े विद्वान है नागेश जी। हाँ। अस्मिता मैम, आपने जितनी बातें कही सब 100 रादर 1000% सही है। मैं उसमें ऐड खाली कर दे रहा हूँ। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, विचार अच्छा रखिए, भावना अच्छा रखिए, भोजन अच्छा रखिए, तब सोने में सुहागा होगा। और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आगे मैं क्या कहूँ, मैं खुद उसको महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नागेश जी। आप प्रैक्टिकल चीज बताते हैं और अब भक्ति की बात भी बताते हैं। और प्रसाद साहब भी कभी कभी जिक्र करते हैं और कहते हैं हमें उस पर विश्वास भी है। और अभी तो हमारे ग्रुप में इतने साधु, मतलब स्मिता मैम तो एक संत बन गई हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहेंगे तो हम लोग का अनुभव और बढ़ेगा। प्रेरणा मैम कम उम्र में ही एक संत का बात कर रही हैं, संत की तरह। तो हम लोग का वास्तव में एक आध्यात्मिक खूब सुंदर ग्रुप बन रहा है। इन लोग के अलावा और भी कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछें। अभी तो हमारे अमिताभ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और ये स्मिता मैडम का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा, और इससे एक आंतरिक पीस यहाँ पे मिली हमारे बीच में। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद हम कहिए हम स्मिता मैडम को, और आगे रिक्वेस्ट करें कि ये आए हमारे बीच में। अमिताभ जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव श्री शशि कमल गोस्वामी भी इसको सुन रहे हैं, और वो भी एक बड़े संत हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट करें कि इस अवसर पे वो भी कुछ बोले, और आगे हम लोग उनको वार्ता के लिए आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शशिकांत गोस्वामी जी
हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग के आध्यात्मिक ग्रुप में, विद्वानों के ग्रुप में आप भी आ गए, तो आप भी कुछ आशीर्वाद वचन बोलें और हमारे महान स्मिता मैम के बारे में कुछ बोलें। भरत पटेल भी बहुत महान थे, शायद चले गए, उनकी भी बात सुननी थी। गुजरात में उन्होंने बहुत लोगों का भला किया है और हम उनको सुनना चाहते थे। अगली बार हम अरुण वाकलू साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो गोस्वामी जी बोलें जरा। गोस्वामी जी आप। अमिताभ जी, मैंने स्मिता मैडम को सुना हाँ। और बहुत अच्छा लगा। इतनी विद्वान और विदुषी महिला हैं और ये योगा पर और इस पे इतना सुंदर जो उन्होंने वक्तव्य दिए, जो प्रवचन ही माना जाएगा। हाँ, मुझे बहुत सत्संग भी अच्छा है। लगा, बहुत ही फॉर्मेटिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। हम लोगों के लिए ये अनुभव है और भविष्य में भी उनसे कहिए आती रहेंगी और हम उन्हें हाँ। सुनते रहेंगे। और बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ स्मिता मैम। शी वाज स्पीकिंग, इट इज अ गेन टू अस। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा अमिताभ जी, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, आपकी बहुत वजह से अच्छा। ये संभव हो सका। हाँ नहीं सर, अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आशीर्वाद वचन बोलें। हमारे यहाँ तो इतने पवित्र आत्माएं हैं, तो किसी और संडे को मैं आपका भी समय लेना चाहूंगा। उसमें स्मिता मैम से कहूंगा कि जब उनको रविवार शनिवार को समय मिले वो आती रहें, क्योंकि मतलब महान आत्माओं के कदम से, उनके आवाज से ही बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं। हाँ, केवल उनकी प्रेजेंस काफी है। हाँ, उनकी प्रेजेंस काफी है। हमारे प्रसाद साहब आ जाते हैं, इससे मतलब हम लोगों का मतलब ये पूरा पवित्र हो जाता है। खान साहब आ जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ। ये वाइब्रेशंस जो हैं, दे वर्क एवरीवेयर। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। और हमारा जो सपना, बचपन से हम लोग साधु संत के साथ रहे हुए हैं और हमारे विचार प्रैक्टिकल लोगों से मिलते नहीं हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अब उम्र के, मैंने 69 ईयर्स उम्र में अब हमको भगवान वो सारा साथ दे रहे हैं जो हमें अब मिलना चाहिए। लोगों को एक साथ देख पा रहे हैं और सभी एक से एक महान विद्वान, एक से एक, जिनका कोई जोड़ नहीं है। जी जी, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। और उमेश जी, आप जो भी आपने कहा है, मैं बहुत ही आपकी दोनों की आभारी हूँ और अमिताभ जी की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसा सत्संग तो हमेशा नहीं मिलता है। नहीं मिलता मगर है। आप रहेंगे तो मिलता रहेगा। हाँ, आप रहेंगी तो मिलता रहेगा। हाँ, अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? 5 मिनट में हम अमिताभ जी, मैं एक छोटा सा एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए विश्वनाथ जी। हाँ, मैंने जो जीवन में अनुभव किया है, जो हम जितने भी हम शब्द बोलते हैं सारे मंत्र हैं। हाँ। आपके अगर सम्मान में कोई कुछ बोलता है तो आप खुश हो जाते हैं। हाँ। मान लीजिए इस तरह की बात करता है जो नहीं करते हैं तो आप नाखुश होते हैं। तो इसीलिए शब्दों के चयन में अगर हम डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा संयम बरतें हैं तो सारा जीवन ही मंत्रमय हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। सबसे बड़ी समस्या है कि इन मंत्रों को, इन पुस्तकों को सबको एक अलमारी में बंद करके रख दिया गया, कपड़े में बांध के उसको मत पढ़ो। लेकिन सारा जीवन राम का जो परिचय है, सारा जीवन राम का संयम का परिचय है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों का डे टू डे लाइफ में यूज होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग उसको प्रयास करेंगे और डे टू डे लाइफ में और मैंने मैडम का इसके पहले वर्कशॉप भी किया है और मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैडम वर्कशॉप भी कराएंगी और जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उससे जुड़िएगा। जब ये मतलब 1 घंटे में इतना शांति मिल सकता है तो 3 दिन के 4 दिन के सेशन में कितना शांति मिलेगा आप अंदाज लगाएं। हमारे बीच चंद्रेश्वर खान साहब हैं। खान साहब का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ये भी एक पवित्र आत्मा और महान आत्मा है। मतलब अभी के समय में ऐसे ऐसे लोगों का रहना बहुत बड़ा भाग्य का बात है। तो खान साहब। अमिताभ जी, मुझे 2 मिनट में 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट में सर का सुन लीजिए। 2 मिनट में हम भी क्लोज कर देंगे। हाँ, खान साहब। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन हाँ। उससे पहले स्मिता जी को हम लोग 2 मिनट सुने, उसके बाद मैं 2 मिनट बोलूंगा। हाँ नहीं, स्मिता जी 2 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट का समय अच्छा, ही है उनके पास। वो ओह, बोले कि 2 ठीक मिनट है, में उनको किसी ठीक। दूसरे सेशन में जाना है। अच्छा, तो वो बोलना चाहती हैं तो पहले बोल दे, उसके बाद आप कुछ बोलना चाहती हैं नहीं स्मिता नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं आपको ही बोलना। सुनना था। 1 मिनट में अरे, मैं अभी मीटिंग लीव करूंगी। अच्छा वो, हाँ हाँ, आप बोल दीजिए सर, आशीर्वाद बच्चन। बहुत 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 धन्यवाद। यस, थैंक यू, थैंक यू। सर्वप्रथम स्मिता जी के आगमन से जो तरंग उत्पन्न हुआ है, उस तरंग को हम आत्मसात करें और हमारे जो कुछ शब्द हैं जिनको हम बार बार लेते हैं, अंग्रेजी के चलते उस पर आघात पहुंचा है। जैसे योग, योग जब बोलेंगे तो ये खोड़ सट जाता है, तो अच्छा, अपने आप अंदर में वो रेजोनेंस पैदा होता है। ध्यान, राम, कृष्ण, ऐसे कई शब्द हैं जो मंत्र जैसे हैं, तो देखिएगा कि वो बाहर और अंदर दोनों में प्रवेश करता है, और जिसको बहुत ही अच्छी तरह से स्मिता जी ने हम लोगों के स्मृति पटल में डाला है। इसके लिए इनको कोटिशः प्रणाम, आभार, धन्यवाद। और फिर एक अमिताभ बार, जी के यस, अथक प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमिताभ जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप मैडम से आग्रह करें कि महीने में नियमित रूप से एक दिन मैडम का हो, उनकी अनुमति से। इसमें क्या फायदा होगा कि ऐसे हम नहीं भी करते हो तो महीना में एक दिन हम लोगों का ध्यान हो जाएगा। ओके। स्मिता एक मैम से सैटरडे या रिक्वेस्ट है संडे कि एक, एक्चुअली गेस्ट के रूप में, ईच थर्सडे को मैं मेडिटेशन लेती हूँ, तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं डालूंगी वो। तो अगर आपको समय है तो जरूर आप शामिल हो जी। हाँ थर्सडे को जरूर, ये शामिल हो आग्रह जाएंगे, है, जरूर लेंगे। आग्रह है। और और अमिताभ जी ऐसे करता, अभी करता है। अभी मैं चलती हूँ जी, अमिताभ बहुत जी, बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपको। हाँ, लेकिन हमें मैडम एक इजाजत दे दीजिए, इतने बड़े बुजुर्ग का प्रार्थना है कि यस महीना में एक बार जरूर आ पाइए। यस, थैंक हाँ, एक यू। एक बार बार जरूर मैं आइए। कोशिश हाँ, जरूर करूंगी। बहुत यस, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और गॉड ब्लेस यू। और ये आज बड़ा अच्छा लगा कि पल्लव जी के पल्लवित विचार हम लोगों के बीच में आया। और बहुत ही पारखी व्यक्ति हैं और क्रियावान हैं। तो इन सबों के लिए प्रसाद साहब का आगमन हुआ, और हम सब लोग अखौरी साहब का आना अपने आप में एक अर्थ रखता है। और इन चीजों को सुनना, आपने जो गैप किया, अब 2 महीने का गैप आज को देख करके नहीं रहा। नहीं अब आगे हाँ, उसको बढ़ाया जाए। बड़ी अच्छी गोष्ठी हुई, संगोष्ठी हुई, ध्यान हुआ, मनन और चिंतन हुआ। और कल हम लोग देखेंगे कि वास्तव में पीपुल लोग कितने मतलब, अभी मनोज कपूर साहब का गाना से फोन आ रहा है, तो वो कल बोलेंगे और इतना बढ़िया बोलेंगे, दोनों के डिफरेंस के बारे में मन खुश हो जाएगा। कल हम लोग जरूर सुनेंगे। प्रसाद साहब ने इच्छा जाहिर की थी, वहां के लोग दिल से माने देखने में काले हैं लेकिन अंदर से इतने साफ सुथरा और इतने बढ़िया हैं कि मतलब अब वो दोनों का डिफरेंस कल सुनिएगा तो मजा आएगा। हाँ, तो कल हम लोग फिर 7 बजे जुड़ते हैं। इसी तरह का आनंद कल भी आपको आएगा। और हम लोग फिर प्रसाद साहब से भी सुनेंगे अमेरिका और इंडिया के कल्चर के डिफरेंस में। और उन्होंने एक चीज और बताया कि यूएई और उसके इंडिया के कल्चर के डिफरेंस में वो कुछ बताएंगे। वो तो ये सब चीज सुनेंगे, हम लोग प्रोग्राम रखेंगे। और एक बार से महीना में हम स्मिता कुलकर्णी मैम को भी सुनेंगे। थैंक यू,
चरण स्पर्श सभी बुजुर्गों को। और मैं चाहूंगा कि कल सभी लोग फिर से शामिल हों और बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आज के शामिल हुए लोगों को जैसा आनंद आया उतना आनंद कल भी आएगा और हमेशा आएगा, क्योंकि हमारे सारे आदमी पवित्र आत्मा हैं और अच्छे अच्छे विचार अपने देते हैं, जो यूजुअली प्रैक्टिकल दुनिया में सुनने को मिलता नहीं है। हमेशा क्रोध, लालच, दूसरे का नुकसान, दूसरे से ये इसी में लगे रहते हैं हम लोग। लेकिन इतना सुंदर सत्संग शायद ही कोई करता होगा। तो हम लोग इसको करेंगे कल, और सुंदर बात करेंगे कि ये काले लोग चर्च में जाके हमेशा आशीर्वाद देते हैं, किसी का लूटते नहीं है, और हम हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि हम लोग उन लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इसका पूरा खुलासा आपको आएगा। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल जरूर आइए। और खासकर बुजुर्ग लोग तो जरूर, बच्चे लोग तो जरूर देखें। बच्चे लोग को मतलब इतने कम उम्र में इतना बढ़िया संगत शायद ही मिलेगा, बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलेगा। और कोई खर्च तो हो नहीं रहा है, केवल समय का ध्यान देना है। बाकी व्यवस्था तो भगवान करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं, सब ईश्वर करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत हाँ, बिल्कुल, ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम हाँ, प्रणाम। बहुत बहुत और धन्यवाद चरण सबों को प्रसाद प्रणाम। साहब को चरण स्पर्श, नहीं नहीं, बहुत खान साहब को चरण स्पर्श, और प्रणाम। सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी और फिर हम लोग प्रणाम कल मिलेंगे। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक, प्रणाम। अच्छा अच्छा, ठीक, बंद हो गया लगता है। अच्छा अच्छा।